میرا نام ساجد ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ 12ویں کے پیپر دینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو گئی تھی، اسی لیے میں ماں باپ سے اجازت لے کر اپنے چچا کے گھر چھٹیاں منانے جانا چاہتا تھا۔ چچا کی شادی کو صرف 15 دن ہی ہوئے تھے، اسی لیے میرے ماں باپ مجھے اس کے گھر جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن کافی سال ہو گئے تھے مجھے چاچا کے گھر گئے ہوئے۔ اس دن اتوار تھا، میرے پاپا نے مجھے چاچا کے گھر چھوڑا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمیں لگا چاچا اور چاچی کہیں باہر گھومنے گئے ہیں۔ پاپا نے چاچا کو فون کیا تو پتا چلا وہ دونوں خریداری کرنے باہر گئے ہیں اور انہیں گھر آنے میں دیر ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دونوں ماما کا انتظار کرتے ہوئے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد چاچا اور چاچی گھر آئے۔ پاپا ان سے باہر سڑک پر ہی ملے، آپ کے گھر واپس جانے لگے۔ چاچی نے اپنے چہرے پر سکارف باندھ رکھا تھا اور چاچا کی بائک پر اس سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آتے ہی چاچی نے اپنے چہرے سے سکارف ہٹایا تو میری نظر چاچی پر گئی۔ میں اپنی چاچی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے چاچا نے اتنی حسین لڑکی سے شادی کی ہوگی، کیونکہ میری چاچی تو بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ دراصل میں ان کی شادی میں بھی نہیں جا سکا تھا کیونکہ اس وقت مجھے گھر کا خیال رکھنا تھا۔ میرے والدین نہیں چاہتے تھے کہ ہم سب شادی میں چلے جائیں اور پیچھے گھر اکیلا ہو۔ اس بار چاچا سے ملنے کی مجھے بہت بے چینی تھی اور ساتھ ہی میں اپنی نئی چاچی سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ میرے پاپا کا کہنا تھا کہ ہم بعد میں کبھی ملیں گے، لیکن مجھے چھٹیاں گزارنی تھی اور اس شہر میں جانا تھا جہاں چاچا رہتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے ضد کر کے پاپا کو چاچا کے گھر چھوڑنے پر راضی کر لیا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید اچھا ہوتا اگر میں اس وقت چاچا کے گھر نہ گیا ہوتا، کیونکہ یہاں میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا تھا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں بار بار اپنی چاچی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ میری چاچی کسی فلم کی ہیروئن جیسی لگ رہی تھی۔ چاچی بہت خوبصورت تھی، جبکہ چاچا دکھنے میں بہت خاص نہیں تھے۔ میری نظر چاچی پر تھی۔ اس دوران چاچا نے مجھے پکارا، ارے اسد بیٹا، کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں کب سے آواز دے رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے جھجک ہوئی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ اتنے سالوں بعد مجھے دیکھ کر چاچا بھی بہت خوش ہوئے۔ چاچی بھی میرے پاس آئی اور مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے پہلی بار ملا ہوں۔ چاچا کے گھر گئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے۔ چاچی میری اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی اور میرے لیے ہر ضرورت کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ چاچا اور چاچی کے رویے سے مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی پوری چھٹیاں یہاں گزارنے والا ہوں، لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ آگے چل کر ایسا موڑ لینے والا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ تیسرے دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو 8 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ چاچا اپنا بیگ پیک کر رہے تھے۔ انہیں بیگ پیک کرتے دیکھ میں نے پوچھا، آپ اتنی صبح بیگ پیک کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر چاچا نے کہا کہ مجھے ایجنٹ کے کام سے 2 مہینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑ رہا ہے۔ اس پر میں نے چاچا سے کہا، کیا بات ہے چاچا، مجھے یہاں آئے ہوئے تو صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں اور آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کو ابھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس پر چاچا نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اگر میں اسے کھو دیتا ہوں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس پروجیکٹ کے کام کا تجربہ مجھے آگے ایک اچھی پوسٹ دلوا سکتا ہے۔ چاچا کے کام کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے چاچا سے کہا، ٹھیک ہے، آج شام کو میں پاپا کو بلا لوں گا اور میں بھی اپنے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہاں نہیں ہوں گے تو میں یہاں رک کر بھی کیا کروں گا۔ تب چاچا نے کہا، اسد، اب میں یہاں نہیں رہوں گا اور تمہاری چاچی کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک میں لوٹ کر نہیں آتا تمہیں چاچی کا خیال رکھنا ہے، اسے کیا چاہیے کیا نہیں اس کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنا، تمہاری چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے خاص طور پر اگر اسے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک اس کی مدد کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں اس وقت کچھ بھی الفاظ کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھا تھا، لیکن آگے چل کر چاچی نے اس لفظ کا جو مطلب مجھے سمجھایا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دن مجھے چاچی کے اندھیرے کے ڈر کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے اس بات پر تھوڑا حیرت بھی ہوئی کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی کو اندھیرے سے اتنا ڈر کیسے لگ سکتا ہے۔ میں نے چاچا سے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چاچا کو ان کے کپڑے سمیٹنے میں مدد کی اور انہیں ایئرپورٹ کے لیے گاڑی تک پہنچایا۔ انہیں الوداع کہہ کر میں اپنی چاچی کے واپس گھر آئے۔ اب گھر میں صرف میں اور چاچی ہی تھے۔ مجھے چاچا کے ساتھ بہت مزہ کرنا تھا، ان کے ساتھ پورے شہر میں گھومنا تھا۔ اس طرح میں اپنی چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن چاچا نے تو اس پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ یہ میرا سوچنا کتنا صحیح تھا اتنا ہی غلط بھی، کیونکہ چاچا کے ساتھ جن تجربات کا مجھے انتظار تھا ان سے بھی زیادہ خاص تجربات چاچی کے ساتھ ہونے والے تھے۔
जिस दिन चाचा गए उस रात मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बोर हो गया तो सोचा टीवी देख लेता हूँ और हॉल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ वक्त बाद चाची मेरे पास आई और बोली, असद मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, लगता है चाचा के जाने के बाद से आपका दिल घर में नहीं लग रहा। मैंने एक सही बात पकड़ी थी। तब चाची ने मुझसे कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। ऐसे कहकर चाची ने मुझे चाचा की बाइक की चाबी पकड़ा दी और फिर मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गई। हम घर से बाहर निकले। बाइक पर चाची मेरे पीछे बैठी थी। उस वक्त अनजाने में चाची का हाथ मेरी कमर से टकरा गया। ये देखकर मैं थोड़ा सा झिझक गया, इसीलिए चाची ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन अगले ही पल चाची ने अपना हाथ मेरी कमर पर फिर से रख दिया। उनके इस तरह के रवैये का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम वापस घर आए। जैसे ही चाची ने घर का दरवाजा बंद किया हम अंदर आए। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। अचानक लाइट जाने से चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं चाची के पीछे खड़ा था, तभी चाची ने पलटकर मुझे जोर से गले लगा लिया। उस वक्त चाची का जो लम्स मुझे हुआ उससे मुझे एकदम बेचैन कर दिया। मैं भी उनमें जवान हो रहा था और कभी किसी औरत का ऐसा लम्स महसूस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। इस वक्त मेरे दिमाग में जो ख्यालात आ रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चाची तकरीबन 5 मिनट तक मुझे ही पकड़े रही और फिर अचानक रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई चाची भी होश में आई और फौरन मुझसे दूर हो गई। मुझे माफ करना, ऐसे कहकर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां क्या हो रहा था, अचानक मेरे साथ जो हुआ, इससे मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे चाचा की वो बात याद आई जो उन्होंने घर से जाने से पहले कही थी कि चाची को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। अब मुझे समझ आया कि चाची ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। उस रात में भी जब अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए चाची बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। चाची काफी मॉडर्न थी और ऐसे कपड़े पहनती थी जो मैंने कभी नहीं देखे, मगर चाची बहुत हसीन थी। वो ये कपड़े पहनकर और भी प्यारी लगती थी। शायद वो इसीलिए ऐसे कपड़े पहनती थी, मगर मैं जब भी उनकी तरफ देखता तो शर्मा सा जाता था। और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसीलिए उनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत खास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो देखा चाची किचन में चाय बना रही थी। उस वक्त उनकी तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। चाची भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो चाची ने फिर से मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से नहीं गई थी। चाची फिर से हंसकर बोली, अरे असद, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात में वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर हंसकर बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वो तो मैंने मजाक में किया है। तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी चाची हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं यह हक लेकर रहूंगी। चाची के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनकी इस तरह की हरकत से मेरे दिल में मुख्तलिफ जज्बात पैदा होने लगे। मुझे भी ये महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। शायद चाचा को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीज हो सकती है। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की ख्वाहिश हुई। समोसे बनाने के बाद मैंने चाची के कहने का सोचा और उनके कमरे की तरफ गया। चाची का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बगैर इजाजत उनके कमरे में चला गया। उस वक्त वो बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने चाची को आहिस्ता से आवाज दी, लेकिन वो सुन नहीं पाई। वो मोबाइल में ऐसी चीज देख रही थी कि उन्हें मेरी आवाज तक नहीं आई थी। हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाने लगा। जब मैंने उनके मोबाइल में झांका तो मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन चाची बेशर्मों की तरह सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा मुझे इस हालत में चाची को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए मैं फौरन दरवाजे के पास वापस चला गया और चाची को जोर से आवाज दी। इस पर चाची एकदम चौंक गई और दुपट्टा दुरुस्त करके खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहां देखकर वो थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तो मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भी मुझे बार बार चाची का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस दिन रात में जोर से बारिश हो रही थी। अचानक रोशनी चली गई और चाची ने मुझे जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उनकी आवाज को सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया।
जैसे ही मैं उनके कमरे में गया उन्होंने मुझे गले लगा लिया। चाची इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझने लगा था। तब चाची ने कहा, असद, जब तक रोशनी नहीं आती मेरे कमरे में रुक सकते हो, क्योंकि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, चाची तुम तो इतनी बड़ी हो, फिर क्यों अंधेरे से डरती हो? ये सुनकर चाची मुझसे खफा होने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे बचपन ही से अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये सुनकर मैं चुप हो गया। वो मेरी चाची थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। हम कुछ वक्त तक बातें करते रहे। मैंने चाची से पूछा कि आपने मेरे चाचा को कहाँ देखा था? ये सुनकर मेरी चाची कहने की वो हमारे घर के करीब ही रहते थे, मैं उन्हें रोज आते जाते देखती थी, मगर कभी उनसे बात नहीं की। ये सुनकर मैंने चाची से पूछा, अच्छा फिर मुलाकात कब हुई? चाची ने बताया कि उन्होंने चाचा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने फौरन शादी करने का फैसला कर लिया। चाची की बातों से ये भी पता चला कि चाचा ने पिछले 1 साल में काफी तरक्की की थी। बातें करते करते काफी वक्त बीत गया था। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि चाची और मैं इस घर में अकेले ही तो थे। इसके अलावा चाची का साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं चाहता था कि मैं हमेशा अपने चचा के घर ही रह जाऊं, मगर ये भी सच था कि मुझे जल्द अपने घर वापस जाना था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये वक्त एंजॉय कर लेना चाहिए। उस रात मुसलसल बारिश होती रही। रात को कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में थे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। गोया मुझे एक अनोखा सुकून मिल गया था। चाची मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ता करते वक्त चाची मुझसे बात कर रही थी। चाची ने कहा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए तुम अपने चाचा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। चाचा जाते वक्त मुझे बता गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। इसीलिए मैंने भी मन में शर्मिंदगी न रखते हुए चाची के पास रुकने का फैसला कर लिया। रात को चाची मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। चाची की बातों में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैं उनके कमरे में सोने लगा। हालांकि चाची इसका फायदा उठाने में लगी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि चाची को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते चाची मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई। मैंने चाची से कहा, मुझे दूध नहीं पीना, मैंने अभी तो खाना खाया था। मगर चाची मुझे कहने लगी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ताकत की जरूरत है, इसीलिए फौरन ये दूध पी लो। लेकिन मैं दूध नहीं पीना चाहता था, क्योंकि रोज रात को चाची मुझे दूध का ग्लास पिला देती थी और उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, जबकि मैं अभी चाची से बातें करना चाहता था। मगर मुझे चाची की बात मानकर वो दूध का ग्लास खाली करना पड़ा। फिर रात को वो दूध पीते हुए और बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई ये मुझे भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि चाची की खूबसूरती अब मेरे दिलो दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात का एहसास हुआ कि चाचा के बाहर जाने के बाद उन्हें मुसलसल फोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा, जिससे मैंने अपने वालिद को कॉल की कि मैं घर आने वाला हूँ। ये सुनकर चाची मुझ पर चढ़ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी चाची ने तुम्हें नहीं बताया कि अपनी चाची का ख्याल रखना है, तुम अभी नहीं जा सकते। चाची की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई, कौन सा रिश्ता और कौन सा ख्याल। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चाची ने तो मुझसे घर न जाने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं ये सब बातचीत चाची को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। रोज मेरा पेट दर्द और मेरी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। चाची तो रोज किसी न किसी बात पर खुश रहने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा तजुर्बा मुझे पहली बार हो रहा था। चाचा को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल डर गया। मैंने अपने कमरे में देखा तो चाची वहां बेफिक्र होकर सो रही थी। बेल मुसलसल बज रही थी, इस वजह से चाची की आंख खुल गई और फिर वो खुद ही दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर चाची घबरा गई। पुलिस ने चाची के हाथ में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पीछे पापा चाचा जी को लेकर आए। चाचा जी के हाथ में भी हथकड़ी थी। उन्हें देखकर मैंने कहा, चाचा आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले बाहर गए थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है।
पापा ने बताया जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली थी जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे चाचा की फोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा ने नाम और शनाख्त बदल कर तुम्हारी चाची से शादी कर ली है। चाचा जी का फोन कटने के बाद पापा को ये चौंकाने वाली मालूमात मिली। चाचा और चाची लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। चाची ने मुझे नशावर दूध पिलाया था। चाचा चाची ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में चाचा चाची अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि चाचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चाचा जी के प्यार में उनके घर छुट्टियां गुजारने गया था, लेकिन उन्होंने चाची के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि पापा ने इस मामले की तहकीक की। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में रिश्ते, मोहब्बत और आपस के जज्बात की कोई कीमत नहीं रह गई है। सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, इसीलिए पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रहे।